श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है MBA चाय वाला। इंटरेस्टिंग So interesting video. So start करते हैं अपनी वीडियो को। Let's start. Okay guys, तो वीडियो में रहते हैं how to start a business with low investment. Praful Lord, Josh Talks. MBA, MBA, and MBA. This what was going on in and out, day and night in my mind. मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया. Finally, I broke down. I was failed. I was lost. I was down. सामान खरीदा, हिम्मत जुटाई और रोड पे चाय का ठेला लगा दिया. जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा, उसको मैंने अपना धंधा बना लिया. क्या बात है भाई? चाय. It is said that great things comes to those who wait. मतलब सब्र का फल चाय होता है. My name is Praful Bellore. Reason of being here started way back in 2014. Year was 2014. You might remember it just because of general election in India. But there is another thing which is going on in Ahmedabad. The reason was CAT, GMAT, and other all common admission test examination to get into the top business school of India to pursue the dream course MBA, like every typical Indian student does after their bachelor's. MBA, MBA, and MBA. This what was going on in and out, day and night in my mind. And that was the reason I started preparing for CAT, Common Administration Test exam, to get into the top business school of India to pursue the dream course called MBA, to set a career on decent money and have an enjoyable life all ahead. So it was MBA and CAT examination going L across 8 to 10 hours a day. LRDI questions, logical reasoning, English comprehensions, questions, answer, accuracy, speed, and everything. Nothing else was there in my mind. No family, no friends, only books and me and मेरी चाय की कप. ये था संसार, ये था जीवन उन दिनों का. 3 लगत साल, 2 फेल्ड अटेम्प्ट और हजारों चाय के कप. Finally, I broke down. I was failed. I was lost. I was down. At the point of preparing for MBA, in just 3 years, I was there. Nowhere, no grounds, nothing. What to do? I closed down the door, I packed, and I slept whole day and night for straight couple of weeks because I had no idea what next in life. Because when you prepare for something and if you don't get it, you feel broke, you feel down, you feel like मेरा कुछ बचा ही नहीं है जीवन में, सब खत्म हो गया है. But it is not the end, guys. It is just a beginning, part and parcel of life. यही तो समय होता है खुद को जानने का, पहचानने का, गलतियों को देखने का कि what next we can do. But I had no idea what to do. I told my father I will not be going to touch a book again in my life. I packed my bag, went to Bangalore, and then after Chennai, Hyderabad, Mumbai, Delhi, Gurgaon, at last the city which I got myself in comfort and felt that now I am feeling better was Ahmedabad, western part of India, Ahmedabad. I told myself, प्रफुल्ल कुछ आगे करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, कब तक घूमेगा, सिटीज़ और पूरा देश दुनिया छोटी पड़ जाएगी, कब तक घूमेगा. मैंने सोचा और आई यूज टू रीड ऑल वे बिग इन स्कूल्स की यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं ना कहीं उन्होंने मैकडोनल्ड्स में जॉब की है, मैकडी जहाँ पे आप बर्गर खाते हैं. मैंने वहाँ पे सोचा, आई गेव एन इंटरव्यू, आई गॉट अ जॉब, 37 रुपीज़, 37 रुपये घंटा. I was learning, and that was new experiment of my life. All these books, all these LRDI question to burger. So started from sweeping. All you guys eat at there, na? The left which I used to take and put it in dustbin. That's why I started. Then after I was making burgers. Then after I was promoted, I was taking orders. I was learning. I was meeting new people every day, new faces, new people, new experiences, and their new efforts to deliver. फिर मैंने सोचा हाउ लॉन्ग विल आई बी डूइंग दिस.
खुद का मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं. एवरीबडी वॉज टेलिंग मी एंड ऑर्डरिंग बर्गर टू मी, बट मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट और एस्टेब्लिश समथिंग ऑफ माई ओन. करना क्या है, दुकान खोल के बर्गर ही तो बेचना है. वाई कुड आई स्टार्ट, मतलब खुद का क्यों ना चालू कर सकूँ. बिल्लौरे बर्गर वाला, इट साउंड्स लाइक, हाँ बिल्लौरे साउंड्स लाइक अमेरिका, नहीं डजंट इट. सो आई डिड द सेम. पर मैंने सोचा बर्गर और कॉफ़ी कौन चालू करेगा या कौन बेचेगा. नहीं ब्रो, नहीं. बर्गर तो ये पहले से अमेरिका से आके इधर बेच रहे हैं, हमें को नहीं. हमें कुछ ऐसी चीज़ बेचना है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करें. पूरे इंडिया जिस पे हर दिन सुबह शाम रात हंसी खुशी कोई भी कारण हो, एक चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हो जाए. और एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, वो थी चाय. चाय ब्रो, यस चाय, जिसने मुझे ज़िंदा रखा मेरे कैट के प्रिपरेशन के दिनों में. चाय का सोचा, बर्तन की दुकान सामने थी. एक चीज़ मैंने हमेशा याद रखी कि ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ. ड्रीम बहुत बड़ा करो, उसको तोड़ दो और छोटा कुछ चालू करो. द रीज़न वॉज कि छोटा चालू करने से कॉन्फिडेंस आता है, मॉरलिटी आता है, और एकदम आपको पता चलता है कि नहीं आज नेक्स्ट स्टेप लेना है. व्हेन यू स्टार्ट बिग इफ यू गेट फेल्ड. मैं पहले से फेल हो चुका था. आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अहमदाबाद फॉर अ कैफे एंड रेस्टोरेंट, बट इट वॉज अराउंड 15 lakh rupees which I needed. And that was a huge amount. I was already failed in my CAT examination. If I asked my father to give me 15 lakh rupees to open a restaurant, you know what? The probability of customer to come at your platform, whether you invest 10,000 rupees or 10 lakh rupees, is totally same. So why to invest that amount, which is huge? I'm from very middle class family, and asking 10 lakh rupees, which my father saved for my marriage or my further study, and put them into one bucket like all eggs, will be a disaster moment for my life. And वो मुझे नहीं करना था. I thought of a tea stall. वहाँ थी बर्तन की दुकान. मैं घुसा. I purchased couple of items like utensil and all, चाय की किटली. At that, those items forced me to purchase rest of the items to put up my चाय का दुकान in Ahmedabad. It took me 45 days to purchase the item, not the item, that courage. वो साहस, वो हिम्मत. A guy who never made चाय for himself at his home, उसको रोड पे जाके चाय का ठेला लगाना है, विच वॉज नॉट एट ऑल अ टशनबाजी, राइट. मैंने सोचा आई विल डू इट दिस. ये कैट एग्जामिनेशन और इससे तो बहुत अच्छा है मेरा चाय की दुकान, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी कमाई, मेरी इंडिपेंडेंस. दैट्स व्हाट वी नीड. और क्या चाहिए भगवान से, ये सब कुछ तो है हमारे पास. तो मैंने कहा दैट्स इट, यही करेगा. आई डिसाइडेड एंड आई डिड इट. ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ. यही एक फिलॉसफी लाइफ में रही है, बाकी कुछ नहीं रहा है. और एक और चीज़, लगे रहो. मैंने कहा चाय की दुकान खोलेंगे. आई डिड द सेम. चाय का ठेला लगाया. अब पैसा लाना कहाँ से था, तो उसका कारण था पापा को कहना कि पापा मुझे एक कोर्स करना है, इंटरनेशनल कोर्स, मेरे को 10-12 हज़ार 15 हज़ार दो ताकि मैं वो कोर्स कर सकूँ. बोले ठीक है बाबा. इंडियन पेरेंट्स, पता है कोई कोर्स वोर्स करना हो ना आपको इंडिया में, पैसे के बनाने के लिए लाख रुपए दे देंगे. पढ़ना है ना, भले बच्चा पढ़े या ना पढ़े, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है अगर आपका लाइफ का कैरियर सेट करना हो. मैंने कहा 10,000 दो पापा, मेरे को करियर में ये करना है, मेरे को वो करना है. एंड ही गेव प्राउडली. चल बेटा दे दूंगा, और भी पैसे की जरूरत लगे ना कोर्स वोर्स करने के लिए तो मैं दे दूंगा. क्योंकि उनको यही था कि बेटा जॉब कर लेगा, बड़े कॉलेज से MBA करने जा रहा है, कुछ ना कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी. दैट्स व्हाट इंडियन पेरेंट्स वांट. मैंने वही कारण बताया कि कहा कि ये भी शांत रहे, मेरा भी काम हो जाए, कोई डिस्प्यूट ना हो. एंड दैट वाज लर्निंग पीरियड एंड समथिंग न्यू विच आई वाज डूइंग. एक चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा. काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल. काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप. तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे. मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे. जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा, उसको मैंने अपना धंधा बना लिया. ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते हो उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू कर दो. जो चाय थी ना, उससे मेरी शादी हो गई, और यही चीज़ हुई थी मेरे साथ. मैंने अपना चाय का ठेला लगाया, अच्छे से सर्विंग करता था. लोग आए नहीं पहले दिन यार. मैंने चाय तो बना ली, मैं बड़ा प्राउड में था कि लोग मेरे पास आएंगे, बट नोबडी वाज कमिंग टू मी. मैंने कहा दोज हु कुडंट हेल्प देमसेल्फ, नोबडी गोना अक्रॉस गोना हेल्प देम. जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे ना, लोग तो आपके पास बिल्कुल मदद नहीं करने. मैंने कहा इफ कस्टमर आर नॉट कमिंग टू मी, लेट मी गो टू देम एंड टेल दैट आई स्टार्टेड माय चाय की दुकान टुडे ओनली, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी. आई सर्व देम दिस वे. एंड अंग्रेजी बोलवा वाला चावल कौन से भाई. तो दैट वेंट बाय एंड आई वाज लाइक थैंक यू सर. सो ऑन सेकंड डे, फर्स्ट डे नो सेलिंग, सेकंड डे 5 चाय 30 रुपीज इज इक्वल टू 150 रुपीज. 9 to 6 जॉब, 7 ऑनवर्ड्स, 7 से 10 11 चाय.
अगले दिन 600 का धंधा. Those customers were already there and waiting for my chai and experience and talk with me कि what is this chai thing and this English and what is, tell me your story behind, what is this. They knew कि this is not a normal चाय वाला, कुछ तो इसकी कहानी है जो अजीब होगी, अलग होगी. मैंने कहा सर बताएंगे, आप चाय पीजिए, चाय पे ज़्यादा बातें नहीं होती है, चाय के बाद बातें करते हैं. तो यही था. अगले दिन 600, अगले दिन 1200, अगले दिन 4000, 5000. माई चाय सेल्स वॉज लाइक दिस, मेरी जॉब वॉज लाइक गोइंग दिस. मैंने कहा आप जॉब नहीं करेंगे. 2 मंथ्स बैंड बाई, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, एवरीबडी वॉज नोइंग मी. मैंने कोई नाम नहीं रखा अपनी चाय की दुकान का, चाय बेच रहा था. भाई मेरे को जानो, आप मेरी चाय से बात करो, ज़्यादा चीज़ें नहीं है. इसी बीच होता है पापा का कॉल आना. आप अहमदाबाद गए थे, क्या कर रहे हो वहाँ पे? उनके पापा कुछ नहीं, MBA कर रहा हूँ. बोले कहाँ है MBA कहाँ है? तो मैंने कहा पापा एडमिशन 2-3 दिनों में हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है. झूठ बोलना पड़ता है. मैंने कहा कुछ झूठ अच्छे होते हैं जीवन में, आप याद रखो. तो आई डिड द सेम. मैंने कहा जॉब पापा मतलब MBA कर रहा हूँ मैं, आप तो ये है एडमिशन फॉर्म 2-3 दिनों में आ जाएगा, आप पैसा डिपॉजिट कर लीजिए. आई टुक अनदर 50,000 फ्रॉम इन, गॉट एन एडमिशन इन लोकल MBA कॉलेज जस्ट टू परस्यू MBA बिकॉज माई फादर वॉन्टेड टू डू. बट ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मेरे को MBA करना. बट आई टुक एन एडमिशन बिकॉज पिताजी है, करना पड़ेगा. तो मैंने एडमिशन ले लिया. 6-7 दिन हो गए, इधर मेरा जॉब छूट गया. 9 से 3 कॉलेज होता था. कॉलेज MBA करने के बाद वो बच्चों के साथ पढ़ रहा था जो जिन्हें कोई लाइफ का ड्रीम नहीं है, बस टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं. मैंने कहा मैं ऐसा क्यों ना 7 दिन मतलब MBA करूँगा, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों ना अपनी चाय की दुकान में 4 घंटे के बजाय 7-8 घंटे खोलूँ, ताकि पैसा भी कमाऊँगा, नाम भी कमाऊँगा और अपना काम हो जाएगा. और क्या चाहिए लाइफ में. मैंने कॉलेज 7वें दिन छोड़ दिया और चलती क्लास में से मैं बाहर आ गया. मैंने कहा अब नो MBA, नो, देयर इज़ ओनली चाय. चाय से मेरी शादी हो गई थी और मैंने उससे आज तक वही मोहब्बत करता हूँ जो शुरू दिन से करी है. क्योंकि कोई भी चीज़ करो ना तो आपसे चीज़ उसको कोई दुनिया में नहीं करना चाहिए. चाय वाले हो तो आपसे अच्छा कोई चाय वाला नहीं है. आप कपड़े सिलते हो ना तो दुनिया में आपसे अच्छा कोई कपड़े सिलने वाला नहीं होना चाहिए. बस जो कर रहे हो ऐसा करो कि आपसे अच्छा कोई नहीं करे. बस एक ही सिद्धांत था मेरी लाइफ का और आई डिड, और पूरा दिलो जान लगा दिया एंड आई वॉज गोइंग. अब वो होता है ना इंडियन मूवीज़ में भी, आपकी सक्सेस है ना लोगों को पसंद नहीं आती, और खासकर पड़ोसियों को. गुंडे बुला रहे हैं, भगा दिया. लोकल लोगों को बोल रहे हैं, पुलिस को बोल रहे हैं कि ये चाय वाला हमसे ज़्यादा कमाने लग गया, इसका ज़्यादा चल रहा है पॉपुलरिटी, तो मजा हटा दिया. 2 महीने में मेरी चाय की दुकान हटा दी उन्होंने. मैंने कहा चाय की दुकान है भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं $1 बिलियन थोड़ी कमा रहा हूँ, आप मेरे को हटा रहे हो? बोले कि नहीं तुम यहाँ नहीं लगा सकते, यही नहीं कर सकते, XYZ रीज़न दे गिव. बन के अब ख़त्म हो गई चीज़ें भाई. अगेन मेरे को प्रिपरेशन करना चाहिए MBA की, क्योंकि ये मेरा चाय का काम नहीं है. मैं हार चुका था. मेरे को इतना ब्रूटली उन्होंने भगाया क्योंकि वो मुझसे घबरा रहे थे कि मेरी चाय की दुकान उनसे ज़्यादा चल रही थी. ये एक जो नॉर्मल जेलसी होती है ना, ये बहुत गंदी चीज़ होती है. बट हाँ, मैंने हटा दिया. 15-20 दिन हो गए मेरा चाय का धंधा बंद. मेरे कस्टमर्स मेरे को कॉल कर रहे कि वेयर आर यू नाउ डेज. मेरे को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे, क्योंकि कनेक्शन तो हो ही जाता है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है. तो यही चीज़ हुई. और इसी कारण में हुआ क्या, रात को नींद नहीं आ रही थी. 12-15 दिन का धंधा बंद. वो कस्टमर से इंट्रैक्शन, दैट सर्विंग वे, न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंस, वो पैसे गिनने की आदत, वो भूल रहा था मैं. वो मुझे याद आ रही थी. अगेन दूसरे एरिया में गया. आई वेंट एक्सप्लोर अहमदाबाद अगेन टू ओपन माई चाय का ठेला इन अ बेटर वे, एंड इन अ वे nobody can touch me even. I go to the college, one of the hospital, and told that doctor, could you please help me to put up my stall outside your hospital so nobody can remove me from here. I will pay you the rent, whatever you want. And I did the same. I used to pay 10,000 rupees. And he told me, कोई बात नहीं भाई, अब लगाओ, अच्छे बंदे हो, आपका अच्छा चल रहा है, आप करो. अब चाय की दुकान तो चालू कर दी. आप मेरी चाय की दुकान पे सिर्फ एक कारण से आओगे, चाय और दूसरा इंटरेक्शन. मैंने कहा इतनी सी बातों से बात नहीं बनेगी. इस प्लेटफॉर्म को एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा अहमदाबाद में जो लोग सिर्फ चाय के लिए याद न रखें. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आप याद रखो. तो मैंने वहाँ पे लगा दिया वाइट बोर्ड, और मैंने रखा कि किसी को जॉब चाहिए तो लिख दो, अपना नाम लिख दो. मेरा कोई भी कस्टमर आएगा ना तो वो देख लेगा इस बंदे को जॉब चाहिए, तो आपको कनेक्ट कर देंगे. यू वॉन्ट बिलीव, ऐसी मेरे हर दिन लोगों को जॉब्स मिलती, लोगों के रिलेशनशिप बने, लोगों को बिजनेसेस मिले, लोगों की शादियाँ चाय की दुकान से हुई है, हमारी दुकान से. अब उसका नाम रखना, सर क्या नाम रखा जाए? करीबन 350-400 नाम हमने लिस्ट डाउन करे. आपको पता है इंडिया में लोग धंधा करें ना करें, नाम के पेजेस तो बना ही लेते हैं. एंड हैड हैपेंड 95% नाम पहले से रजिस्टर्ड थे. तो मैंने कहा यार अब नाम ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि हम यूनिक हैं तो हमारा नाम भी थोड़ा यूनिक होना चाहिए. तो मैंने अपनी चाय का दुकान का नाम रखा मिस्टर बिल्लौरे. बिल्लौरे मेरा सरनेम.
अब बिल्लौरे का स्पेलिंग बिलियनर से मैच होता है। लोग मेरे को बिल्लौरानी बोलते थे, बिलियनर बोलते थे, उनका जो मन चाहता था बोलते थे। मैंने कहा बॉस ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मिस्टर बिल्लौरे के आगे लगाया अहमदाबाद। तो मिस्टर का बी एम, बिल्लौरे का बी, अहमदाबाद का है, और ऐसे बना MBA चाय वाला। सारे डोमेन से, कोई इंस्टाग्राम पे पेज नहीं था, फेसबुक पे पेज नहीं था। मेरे को लगा भगवान ने अपने लिए संडे को बैठ के अपना डिज़ाइन किया कि बेटा तेरा कैट फेल होगा, अब चाय बना तू तो, और नाम भी ये रख दिया, जो होगा देखा जाएगा। चाय बेच रहा था तब तक तो अप्रिसिएशन मिला, बट जब MBA चाय वाला ऑन बोर्ड आया ना, लोग हंसते थे। MBA करी ना चाय बेचे थे, आज देश की हालत देखो, MBA करने के बाद इनको नौकरी, ऐसे लोग हंसते थे मेरे पे। मैंने क्या, 1 महीना हो गया लोग हंस रहे मेरे पे। मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है प्रफुल्ल, तो नाम बदलना चाहिए तुझे, क्योंकि अगर नाम, तेरे काम तो अच्छे हैं, नाम से शायद हो सकता है तेरा हालत ख़राब हो जाए या तू फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा नहीं, नाम मिल गया है, काम मिल गया, अब यही करेगा, लोग हंसेगा, आई डोंट केयर। वाई शुड आई केयर विद पीपल दूज नेवर हेल्ड मी इन माई लाइफ टू गेट सक्सेस। तो उनका मेको ओपिनियन और उनकी एडवाइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपको सफल होने में अगर एडवाइस ना दें, तो आपके बुरे वक्त में उनकी जो बुराइयाँ होती हैं ना, उन्हें भी सुनने का उन्हें कोई हक नहीं है ना, आपको हक है, तो उनको दूर ही रखिए आप। यही चीज़ हुई मेरे साथ। MBA चावला ऑन बोर्ड, लोकल इवेंट्स, म्यूजिकल नाइट, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, विमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सोशल कॉज, ब्लड डोनेशन, फ्लड आ गया हो, नेचुरल कैलमिटीज़ आ गई, MBA चावल विल बी देयर टू हेल्प यू ईदर वे, टू सपोर्ट फिजिकली और फाइनेंशियली। हम लोग चाय बनाएगा, उस दिन का जितना भी पैसा इकट्ठा होगा हम उनको दे देंगे। ऐसी चाय की दुकान पे 2 साल में मैंने कम से कम 150 से 200 इवेंट्स करी। तो चाय वॉज नॉट ओनली द रीजन, पीपल यूज टू कम फॉर अ नेटवर्किंग, फॉर मेनी रीजन एट MBA चाय वाला। वहाँ के बाद बहुत सारी इवेंट्स हुई, NGOs हुए, पूरी दुनिया में जाके सोशल कॉज हुए। और अभी तो मैं कॉलेजों में जाके बताता हूँ लोगों की हाउ टू परस्यू अ ड्रीम, फ्रॉम दैट चाय की दुकान और रोड साइड टू बिकमिंग द सेकंड मोस्ट फेमस चावल ऑफ इंडिया आफ्टर अवर beloved प्राइम मिनिस्टर मोदी। देर इज यूज दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, बट आई लव द जर्नी। सो बड़े बड़े कॉलेजेस, IIMs हो गया, बड़े बड़े कॉलेजेस लाइक हार्वर्ड, जहाँ से MBA करना था, से लेके वो छोड़ना, किताबें फेंकना, 8,000 रुपये जेब में रखना, पापा से झूठ बोल के लाना और फिर रखना, चाय का ठेला रोड पे लगाना, से लेके आज इंटरनेशनल इवेंट्स हो गई जहाँ पे पूरी दुनिया में मैं जाके चाय बनाता हूँ। कारण सुख का हो, दुख का हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई पता नहीं है। 8,000 से शुरुआत होके आज जब मैं करोड़ों का काम चाय के थ्रू कर रहा हूँ, जहाँ एक बंदे ने चालू करा था, 30 से 35 लोगों की टीम हो गई है, परिवार बन गया है। तो मेरा सीधा यही कहना है बॉस, कि मैंने चाय बेची, आप रेवड़ियाँ बेचो, कुछ भी बेचो, मुझे बेचो, जो भी प्रोडक्ट आपको अक्रॉस इंडिया मिल सकता है बेचो। हर चीज़ बेची जा सकती है, और जो चीज़ बेची जा सकती है वहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, और पैसा तो हर चीज़ से कमाया सकता है, बस पैशन होना चाहिए। बट एक चीज़ में रहो कि खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज़्यादा इंस्पायर मत हो, अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो, अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। तो ये जर्नी मेरी, आप लोग भी सब कर सकते हो। दैट्स हाउ। थैंक यू। Tell us what you think about this video and जी रियल खुश हो गई, जबरदस्त। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी कोई ठेला उठाऊं और रोड पर निकल जाऊं और चाय बेचूं, क्योंकि चाय से मुझे भी बहुत लगाव। वो कह रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी खुद में। अच्छा नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो ना, उसने कहा, लेकिन उसका बेसिकली जो मकसद था ना वो समझाने को, नहीं आप गैट कर पाए कि नहीं कर पाए। कहने का मकसद ये था कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, और तरीकेकार बड़ा होता है, चाहे वो टाटा हो या बाटा, जूते और लोहे का काम। अच्छा, जब देखा जाए तो जब हमने वीडियो का टाइटल देखा तो हम यही समझे कि MBA शख्स हो गए। हाँ, और चाय के लिए, चाय का बिजनेस। अच्छा, मैं इसको रिलेट कर पा रही थी मोदी जी से, बड़े हार्ड वर्किंग है वो, जाहिर सी बात है कहाँ से कहाँ पहुंचे, ठीक है, वो भी चाय वाले थे। तो मैं इनको यही समझ पा रही थी कि ये मतलब मुश्किलात के, परेशानियों के घेरे में घिर गए हैं, उसके सर्कल में आ गए हैं। हाँ, तो तरक्की करने के चक्कर में जो हमने अपनी माइंड में बना ली थी वो बोली नहीं थी। अच्छा, तो मुझे ये ऐसा लगा कि इसने मतलब मुश्किलात को, परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उनको मुकाबला करते हुए MBA होने के बावजूद ठेला लगाया, चाय बेच रहा है। तो इसको मतलब इस तरीके से मतलब इसकी स्टोरी होगी, कोई फिर बाद में ही अमीर हो गया या पढ़ गया या कुछ ऐसे। सेकंड ये कि ये जो बातें हैं वाकई ये हर इंसान की जिंदगी में आती है। मैं अक्सर नोट करता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि हमें ये नहीं पता होता कि हम करें क्या।
हम हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती है, कुछ लोग बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, फिर ये सोच के नहीं आ रही काम तो बहुत होता है, चाय का, जूतों का, इसका उसका सोच कर मतलब छोड़ देते हैं कि हम नहीं करेंगे, कितना गलत लगेगा, कितना चीज लगेगा। लेकिन उनने सबसे अच्छी बात ये कही कि आप अपनी स्टोरी को खुद डिजाइन करो और आप ऐसे बनो कि कोई और आपके मतलब आपके मुकाबले में कोई हो ही ना। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय ऐसी बनाओ कि किसी और की मतलब राम राम हो जाए हर किसी की चाय का, बस आप ही आप एक शख्स आप छा जाओ। मैंने एक चीज नोट की अपनी लाइफ में कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, शहर में रहता हूँ, अच्छा देहात में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं उस देहात के लेवल पे, लेकिन वहाँ पे फिर भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, फिर भी कहीं ना कहीं निकालने वाला वहाँ निकाल सकता है लेकिन नहीं होती लेकिन शादी। अगर कोई गुंजान सिटीज में जो बहुत आबादी है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहाँ पर रहने वाला अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बेरोजगार हूँ या मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मैं परेशान हूँ, तो मैं कहता हूँ बहुत अफसोस की बात है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान करने वाला कुछ भी अगर कर इंसान चाहे कुछ भी कर अच्छा, सकता है। एज वाइज आपने देखा बिल्कुल जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटे हैं, मैच्योर भी इतने ज़्यादा नहीं है, बातों से फील हो रहा था कि अब जाके वही कहें कि एक परिवार की तरह बन गया है, 35 से 40 लोग हैं, अब काम कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं कि बड़े बड़े मतलब हम इवेंट्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, सब चीज़, और कह रहे हैं शादी तक हुई है, शादी तक हुई है, मतलब लोगों की कनेक्टिविटी का एक नेटवर्क बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इन्होंने चाय से हटकर भी कुछ करा, अच्छा एक चीज और, कुछ यूनिक कर दिया ना। एक मतलब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि तालीम जरूरी है या बिजनेस जरूरी है, या इंसान कारोबार करे, बहुत अमीर बिजनेसमैन टाइकून बने अमीर या एजुकेटेड, तो आपने कहा एजुकेशन था, अपनी जगह, तो यहाँ पे जो कामयाबी की वजह है नहीं वही एकदम ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इलिटरेट नहीं ना, वही मैं कह रहा हूँ, एजुकेटेड है तो वही अपने काम को सलीके से कर पाया और अपने काम को दुनिया के यूनिक करके। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, ये भी है। क्या मतलब आप किसी का छीन भी थोड़ी ना ले लो, अच्छा, कभी भी दूसरी रिस्क तो मतलब मैं हमारे मतलब मैं 100% ये है कि इंसान अपने मेहनत करता है, अपने नसीब का खाता है, बिल्कुल इंसान अपनी मेहनत करे, लेकिन अगर सामने कोई और शौक है तो उससे मत ना डरे, मतलब आप अपनी मेहनत करें, आपको अपना मिलेगा 100% मिलेगा। हाँ, कंपटीशन थोड़ी है, आप वो अपना चाय बेच रहे हैं, आप भी चाय बेच रहे हो, लोगों को उसकी पसंद है वो उसकी लेंगे, लोगों को आपकी पसंद है आपकी लेंगे, कोई मतलब कोई बदमस्ती तो बीच में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, जबरदस्ती मतलब मुझे भिजवा दिया, 100 रीजन दे दिए। एक शख्स जॉब करता है ना, बहुत ज्यादा लाख 1.5 लाख सैलरी हो जाएगी, किसी अच्छी पोस्ट पे होगा, उससे बहुत बेहतर छोटा सा बिजनेस आपको रेवेन्यू देता है। ये 100% बात है कि एक छोटा सा बिजनेस भी, चाय का बिजनेस भी आपको 1 लाख 2 लाख सैलरी वाले से ज्यादा देता है, लेकिन शर्त ये है कि आप करने वाले बने और आप अपने काम से ऑनेस्ट हो, सबसे बड़ी बात ये। देखिए आप, वो अपनी चाय के बारे में भी इतना सोच रहा था कि इसको यूनिक कैसे बनाऊं, मैं इसको किस तरीके से मतलब यूनिक बना पाऊं कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हो जाऊं, मैं फेमस मतलब दैट्स बात बहुत वायरल हो गई है, तो नए लोगों ने मतलब इंस्टा तक पे अप्रोच कर लिया, आप देखा, तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे अक्सर हमने देखा है कि बसों के अंदर आते हैं, बसों के जो ड्राइवर होते हैं वो लोग पानी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, उनसे 10 रुपये 5 रुपये लेते हैं 10 रुपये। आपको पता है एक शख्स आया, पैसे मांगने लगे कि यार मेरे पास जंग बिल्कुल बेहतरीन खट्टा पैसे नहीं है खाने को, यार मुझे 50 रुपये दे दो, तो यार आपको 20 रुपये से भी 50 रुपये से भी कुछ लोग 200-300। तो अच्छा, मैंने ये सुना है कि जितना अगर एक बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, आपको बड़ा सेटअप करते हो, कपड़ों का हो गया, जूतों का हो गया, तो उसमें आपको इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना आपको छोटे बिजनेस में होता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बस वही वाले करने वाला हो। अच्छा, आपने आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या करने के लिए मैंने ये सीखा कि आप अपनी स्टोरी खुद लिखो और आप जैसा कोई और ना हो, पहले आप छोटे से छोटा करो, लेकिन उसको इस वे में करो कि वो इतना यूनिक बन जाए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बस आपका ही नाम। तो एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन, बहुत ही मोटिवेशनल, और हमें मतलब है कि बहुत सारे लोगों को जो भी ये वीडियो देखे इससे बहुत कुछ सीख सकता है कि यार जिंदगी का एंड कहीं नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं इंसान को ब्रोकअप नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट हमने ये मिस कर दिया, ब्रोकअप नहीं होना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको हिम्मत करनी चाहिए। देखिए एक काम एक दफा फेलियर हो गए, आप 2 बार फेलियर हो गए, 3 बार फेलियर हो गए, उसके बाद आप कहते हो इनफ इज इनफ,
बस आप खुद से कहते हो कि यार जैसे उसने बोला कि मैंने तहैया कर लिया कि मैं अब बुक्स को टच नहीं करने वाला हूँ। अपने पापा को कहा मैं कुछ भी करके अब पूरी लाइफ इनको टच नहीं करूँगा। मैंने बहुत पढ़ लिया लेकिन मैं नाकाम रहा। तो ऐसा होता है कि इंसान की एक वक्त में ना हिम्मत जवाब दे जाती है, जैसे हम कहते हैं ना। कौन सी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारे 3 से 4 बिजनेस उसने किए थे, तो उसके बाद भी नाकाम रहा था। जो ताले से उसको याद है, लॉक से। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो की थी जिसमें 3-4 बिजनेस करने के बाद, नाकाम होने के बाद आज एक टाइम ऑन है। तो इस तरह से बहुत सारे मिसालें मिलती हैं कि जो जिंदगी में स्टार्ट गॉडरेज शायद जो जिंदगी में नाकाम रहे, लेकिन ये कि उसके बाद जाके अच्छा नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझ पाई कि इंसानी एक फितरत है कि इंसान एक वक्त में ना उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। जैसे ये कह रहा था कि मैं बस टूट गया, मैंने बोला बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ और करूँ। तो ये भी नहीं है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, नहीं हो रहा ना एक जगह से, आपको लग रहा है कि रास्ता, तकदीर का रास्ता या तकदीर का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो आप दूसरे दरवाजे को नॉक करो, तीसरे को नॉक करो। हिम्मत ना हारो। जिसने हिम्मत हारी, एक फील्ड में अगर आप नाकाम हो तो दूसरी फील्ड चुन लो, दूसरी में तीसरी फील्ड। इंसान अगर जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है, हिम्मत करता है, तो उसको कभी भी नाकाम नहीं होता। लेकिन नाकाम वक्ती तौर पर जरूर होता है, लेकिन उसको कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलती है। एक चीज और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉइंट आउट कर रहा है, एस्टैब्लिश, खुद अपना कुछ करो, खुद एस्टैब्लिश हो। किसी के यहाँ जॉब करना, किसी के यहाँ नौकरी करना क्या दे देगा, 1.5 बस दैट्स इट। लेकिन वो आप वहीं अटके रहोगे, उसी के होकर रह जाओगे। तो ये उसमें कोई मतलब है कि आपका आप फ्यूचर कुछ एस्टैब्लिश करो। अपना छोटा सा भी बिजनेस बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन किसी के पास जॉब करेंगे तो वो आप आगे बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त स्टोरी, मोटिवेशनल, बहुत जिस शख्स ने भी हमें सेंड की, मैं कहता हूँ मैं तो बहुत मोटिवेट हो गई सीरियसली। और आप ये वॉलंटियर लगाने जा रही हैं, क्या करें, क्या चाय कॉफी लेकिन वैसे अभी मैं बहुत सारी ऐसी कराची में भी वीडियो देखता हूँ जिसमें खवातीन, क्योंकि हालात बहुत टूटे हैं, ये कोविड के बाद बहुत हालात टूटे, तो कई खवातीन ने बर्गर के ठेले लगाए, बिल्कुल स्कार्फ के साथ, कपारे के साथ खड़े होके। एक तो 2 बेटियां और माँ प्रॉपर बर्गर बेच रही थी। एक लेडी आई थिंक 35-40 इयर्स की, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, हेवी ट्रैवलर चला रही और माल लेकर जा रही है अफगानिस्तान। मैंने वीडियो देखी, मैं हैरान परेशान रह गई, इतना जोश, मतलब इतनी हिम्मत कहाँ से हुई, इतने मर्दों से आप लेकर जा रही अकेली साथ, और छोटे छोटे बच्चे होंगे, 10 साल का, 8 साल का। ऑटो चलाने वाली औरतें देखी गई जो बाकायदा, लेकिन चले ऑटो तो फिर समझ में आता है, हेवी ट्रैवलर कैसे, मतलब बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। उनके हस्बैंड चलाते थे। तो ये है कि मैं अक्सर ये देखा, कईयों ने घरों से काम शुरू कर दिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप चाहें या आपको अजीब सा लग रहा है कि यार बाहर में भी अगर कई खवातीन ऐसी है जो नहीं भी कर पाती, नेचर के ऊपर होता है। हालांकि होता कुछ नहीं कि लोग आपको उल्टा सपोर्ट करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कईयों ने घरों से काम स्टार्ट किए और बाकायदा कामयाब हुए। तो कहने का मतलब ये कि आप एक अंदर जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं और उसको करते रहें, लगे रहें। एक बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत वीडियो, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन इसके अंदर। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।